ई आवाज़ और 770 रेडियो की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। बज़्म शेर व अदब के प्रोग्राम के सिलसिले में आपको हारून साहब के घर ईद के ओपन हाउस में लेकर आए हैं। यहाँ आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शख्सियात आज से मैं होगी। 6 महीने के बाद आपके घर पे आया हूँ, तो खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत शुजात, ई आवाज़ टीवी बज़्म शेर व अदब के साथ आज हम लोग हारून खान साहब के यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ईद की सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद को हर साल की तरह। और ये पहले नहीं, काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, ईद पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कनाडा मल्टी कल्चर है, और बहुत खुश अखलाक़ी से, खुश असलूबी के साथ हारून साहब सबको वेलकम कह रहे हैं। It's a privilege to be here today. I have Deputy Chief Mark DePat. My name is Nishan Duryapa. I'm the Chief of Police for Peel Regional Police. And I'm here with my good friend, Mr. Haroon Khan, who's again opened his house for over 40 years to celebrate and bring community together. But it's a privilege mainly for me because I actually call Haroon my uncle. I call him uncle. And I have known him for over 20 years in policing. And we know the heart of what Haroon does is bring the community together in a positive space so that we have focus on relationships, and also that he invites people like us at the police service to come. I have some officers inside because he knows there are important opportunities to build relationships that are not in the middle of a crisis. It's not in the middle of an emergency, but these are the times to build good relationships. But it's a privilege to be here. We here in Peel want to make sure this community, the Greater Toronto area, knows that they have the most amazing women and men serving them, and that we know we want to continue to preserve the peace and public safety, and we're working really hard to do our best in this space. So thank you so much, and we really are privileged to be here on Eid. And Mr. Khan, thank you so much for your relationship and friendship with us. It's an honor to have you and Deputy in my home. It's an honor. I know you are very, very busy, but it's an honor for me, and it's an honor for the community, because the community is seeing the friends I have inside. They're saying the chief and deputy are here, so it makes you very close. As I said, when you stop me with $100 ticket, I don't like you, but now they know that you are one of the best chief and deputy chief we have. I think Mississauga and Brampton are very sincerely, they are very lucky to have a team like you and your officers. They are doing their best. And I always talk to people, I talk to all the politicians. We do have problems, but we are still the best country on earth. We have the best country on earth. We have a wonderful police force. But if the police force is short of funds, they need more manpower. Right? People have to understand that they have less manpower. We got to pay a little bit more in taxes. That's all the solution is. If you want to close your eyes with the taxes, don't want to pay, you want best possible service, that's not going to happen. And that is my opinion. Thank you, Haroon, first of all, for your support for us and for the community, obviously. And yes, we are a very busy region, 1.7 million people. And if we could have more officers and more civilians, we could respond to things in a different way. As you know, we have lots of big urban pressures, whether it be the break and enters or auto theft. And we can't do it alone. But yes, we've been thankful to have the support thus far of our elected officials that are getting us the resources we need, but that will continue to be a need because this region is growing. We need more resources, Chief. Yes. We need more resources to keep the city, because the way the crime is increasing, it's out of your hand. The other thing is the politicians have to wake up and change the laws. We got to change the laws, make them a little bit more stricter. You are doing your job. You grab a person, but if the court system let them go, there's nothing you can do. That's and we all true. have to understand this. Yeah, that's true. Any final comments, Yes. Mark? You know what? You've said so much already. We're just very, very happy to be invited here. And I think it's important to be reminded that the police are also just as honored and enriched
when we interact and engage with these communities and build these relationships just as much as the community. So thank you very much, and happy Father's Day also to all the fathers out there. Father Day. Happy Father Day. Happy Father On one Day. of the best note is that because of the Mr. Harun, I'm just very happy that when we meet you guys, that this what we do. Oh, the police are coming, and we are just now after meeting you, we have like we are little courage and to meet them is not fine. Oh, yeah, it's police. No, oh, police is coming. We're just running here and they're doing nothing wrong, but even then we are doing it. Like we are scared. But because of the Mr. Harun and all of you, it's really amazing to be with you guys and understand you. Like, oh, you are just one of us. There's nothing different about it. It's just a uniform. Thank you so much. Okay, sir, I have a question from you that how come you didn't gain any weight? You have to tell us the secret. Well, today, just to be very open and honest, I had 4 samosas. But we have the advantage of unfortunately working day and night, so we keep moving and moving, and that I think is probably what allows us to stay stay trim. I've Thank you. seen other people also, even they are moving and everything. You must be doing something that you are not. Are you going to the gym? Are you to some We do try exercise? to look after our health. We encourage all of our, and Mark is a very strong man. He's very fit, but yeah. All the weight that the chief has lost, I've found. So what about the Father's Day? Happy Father's Day. What did you do for your I children? have yet to do anything yet for Father's Day because we've been working throughout the day. Hopefully, at some point this evening, we'll see my family and my children. But yeah, no, thank you. I got a message from his assistant the other day that Chief is busy on Father's Day. I said, that's wonderful, but can you please ask him to take a little time out? And I'm glad to report that he's been here for a very, very long time. I wasn't expecting that he will stay, and he and his assistant. So there are 2 big days, Father's Day and the Eid Day. So what message would you like to give to fathers? And what message you like to give to the Mississauga and all the Toronto? What should they, any important thing? Yeah. So again, Eid Mubarak, and we, as you know, Mark was born in the Philippines. I was born in Sri Lanka. This beautiful, vibrant country has given us so many wonderful opportunities. So today we make it a point to come and celebrate, and we have to enjoy this beautiful day and the peace that brings with it. The other thing is for Father's Day, and for those that are father figures or otherwise, we just want to make sure that everyone knows that we thank them for their role in making sure young people in this community become good, strong, healthy contributors to our society. Okay, one question, it's a very small question, that about the fast speeding and driving and everything. If there is a speed limit of 60, I always go on 60, but people are going on the same 70, 80, 90, and then they look at me very like that I'm a fool who's driving 60. Is there anything going to be for them who drives fast? Like everywhere it's the same thing. Let me first thank you for following the speed limit. You're doing the right thing. Do not listen to anybody else that is maybe doing otherwise. But yes, speeding is one of our largest issues in Peel region is traffic accidents and road safety. We lose more lives here because of road accidents than anything else in Peel. So, we are trying our best. Our officers are enforcing traffic. We know that some of the cities have installed speed traffic cameras. We are big, strong supporters of that because it helps change behaviors. But that is a number one issue. We have more vehicles on the road annually here in Peel region than anywhere else. Thank you very much. It was a pleasure on Eid that you made our Eid. You both. We respect you so much, and thank you very much, sir. Thank you. It's so good to see all of you too. as Thank you well. very much. Thank you. Thank you all. Thank you, Mark. Mark, I have one question. Today I have Father Day. Yes. How many children you have? I've got 2 beautiful boys. One of them is 20 years old. Another one is 14. They're at home right now. They're the apple of my eye. I love them so dearly. I can't wait to see them. 20 years old. You look like a young father. Thank you, Mark. Thank you very much. Thank you, sir. I'm from Japan. I'm Consul General of Japan in Toronto. Oh, good. Oh, good. So
delighted to be here. I arrived at the end of January this year to Toronto. I found the city enormously fascinating, marvelous. People are so kind, and city is so beautiful. Toronto, Mississauga, and other parts of GTA, beautiful, and people are exceedingly open-minded and kind. I'm so happy to be here. Yes, and very much looking forward to working here. And today I'm so delighted of having the privilege of greeting so many local people in Mississauga, and I'm so grateful for the hospitality of Mr. and Mrs. Harun Khan. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I really, and that's and the one thing you said about that's you come to a beautiful country, Canada, Yes. Toronto. Toronto is, Yes. So, बहुत but beautiful. you are saying it's something amazing because Japan is already so beautiful. Beautiful. So, you. like So I much know, I saw the stories pictures. there. I want to go there one day, sure. Yeah, yes, absolutely. Yes, please do come. Yes, there are many things to offer in Japan. Yes, people and culture, Yes. architecture, and of course, Japanese culinary culture. Oh, Japanese that food. was it is amazing. Yes, so Japan is looking forward to receiving you. Oh, thank you. Because people of Canada, people in Ontario, people in Mississauga, Toronto, and other Yeah. area of GTA are very, very much welcome in Japan. And please savor the Japan's signature hospitality. Oh yeah, sure. Pay a visit. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, and it's very nice talking to you, and really, and we will be seeing you again, inshallah. おはようございます is good morning. And こんにちは is hello in Japanese. Oh, that's Hi. good. Yeah. That's good. Yeah. See, we learned something today from you. Thank you. फ्रूट भी है और सवैयाँ भी हैं और बाकलवाज भी हैं नहायत डिलिशियस किस्म के और फिर लंच का भी निहारी बनी हुई और हर किस्म के मज़े मज़े के खाने रखे हुए हैं पूरी हलवा दही बल्ला फ्रूट चाट स्प्रिंग रोल्स और एक दूसरे के साथ मुलाकातें हो रही हैं ईद मुबारक कहा जा रहा है और सब इंजॉय कर रहे हैं का नाम सबा है इन्होंने बहुत खूबसूरत ड्रेस यहाँ पे पहना हुआ है और ये ड्रेस इन्होंने यहीं बैंक्वेट हॉल से लिया है और अपने ड्रेस के साथ ये इसी तरह की खूबसूरत खुद भी हैं और वेरी नाइस खूब ईद का समा जो है वो लग रहा है और इन्होंने ईद की मुनासिबत से ड्रेस पहना। अस्सलाम वालेकुम, मैं गेती आरा और फरहत के बस अदब के प्रोग्राम के साथ हम लोग ये एक बहुत खूबसूरत सी महफिल मिस्टर हारून के आए हुए हैं। तो यहाँ जनाब बहुत अच्छे मेहमान, खूबसूरत मज़ेदार से खाने और खूबसूरत मेहमान, और अब हमने सोचा क्यों ना आपसे भी कुछ बात की जाए। तो जनाब अपना नाम तो बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम परवीन है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू देखने वालों सुनने वालों को, और ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आरफा बहन आपसे स्पेशली क्योंकि आप मुझे जानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई की यहाँ तकरीबन 1947 ईयर्स से ये प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सक्सेसफुल है और माशाल्लाह हर साल ईद, रमज़ान ईद और बकरा ईद दोनों पे ये प्रोग्राम होता है। जी। और माशाल्लाह इनका घर हर एक के लिए खुला होता है, ओपन इनविटेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चंद सालों से आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी वालदा ने कई साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था। इनकी वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि बहुत अच्छी नेक खातून थी। उनके बेटे ने ये ट्रेडिशन कायम रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी ये बड़ी हॉस्पिटैलिटी, बहुत बड़े हॉस्पिटल कहते हैं ना कि मेहमान नवाज हैं ये माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना घर लोगों के लिए खुला हुआ है। सारे लोग आते हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, सिख, मुसलमान, सभी इसमें हम जमा होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक ऐसा घर है टोरंटो में, मिसिसागा में, कि जहाँ सब लोग मिल बैठ के खाते पीते हैं और ईद की खुशियाँ मनाते हैं। सही मानों में लगता है कि एक यूनिटी है,
यूनिटी है मुख्तलिफ कल्चर्स की, मुख्तलिफ मज़हब की, मुख्तलिफ लोगों की, जिसको सही मानों में यहाँ आके इनके घर में माशाल्लाह हारून साहब के घर में आके हमें ये बात पता चली और आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा हमें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम लोग तकरीबन मैं तो 1975 से यहाँ हूँ। उनकी अम्मी ने ये ट्रेडिशन शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों पहले, और उन्होंने कंटिन्यू रख के उनकी याद हमेशा ताज़ा करते हैं। हम लोग उनको याद करते हैं इस दिन को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबको हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आइंदा भी एंजॉय करते रहेंगे। इनका प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी, हम लोग आज हारून खान साहब के यहाँ जमा हुए हैं और हर साल की तरह ईद पार्टी में और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। नूरुद्दीन अली अहमद इज़ माई नेम। हर साल जो है वो हारून भाई के यहाँ हम जो है वो ज़रूर आते हैं ईद के मौके के ऊपर। ये ईद दो किस्म की है, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर। तो इस वक्त हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करने के लिए हारून भाई के यहाँ जमा हुए हैं। इस ईद का बैकग्राउंड ये है कि इसको जो है वो हज में और जो है हज़रत इब्राहीम की जो कुर्बानी है उसकी याद सुन्नत के में जो है वो मनाया जाता है। तो बस इसका बैकग्राउंड ईद का वो ये है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। इसके अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ फीस्ट जो कि जो है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट है। और इसके अलावा जो है वो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर यू नो टू मीट विद पीपल। मतलब है कि लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करते हैं, काफ़ी सारों के साथ जिनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हो पाती नॉर्मली, वो आप एक जगह पे जो है वो सब लोगों से मिल लेते हैं। सो यू नो हर साल वी लुक फॉरवर्ड यू नो टू कमिंग टू हारून भाई प्लेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। सबको ईद मुबारक। हम यहाँ हर साल इकट्ठे होते हैं ईद पे, और ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है जहाँ बहुत मिलना मिलाना होता है लोगों के साथ, और सही फीलिंग आती है कि हम जैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, वहाँ खाना पीना होता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। दूसरा यहाँ पे जो यहाँ और पाकिस्तान में फ़र्क नज़र आता है, यहाँ आपको बाहर जो सुकून है यहाँ पे, यहाँ सुकून है, डर नहीं है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे आपको बाहर दरवाज़ों पे लटकी हुई गाय और बकरे नजर नहीं आते। जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो यही नज़र आता है यहाँ। जी, बिल्कुल आपने ये कहा है कि ये बकरे और गाय नज़र नहीं आ रहे हैं बज़ाहिर, और ये कि लोगों को कोई डर खौफ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं विश करती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी हालात ऐसे ही अच्छे हो जाएं। एज ए मुस्लिम हम लोगों की सबकी यही कोशिश है। This is my first time here. Oh, it's good. First time ever, and I really want to thank the host here, Mr. Haroon Khan. And I do know his brother, Assam, and I met the family, and this is absolutely wonderful. It really is. The food, the presentation, the people have been absolutely wonderful, and it's been a real treat for me to come here and share this with everybody else here. My name is Bill Buba, and I'm here from Toronto. I'm a Canadian, and it's been a real pleasure to come here this afternoon. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम है पॉल चैंग। मैं हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्कम यूनियनविल से, और मेरा ख़ास काम है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीज़नशिप में, और मैं मेंबर बना हूँ 2021 से। और मैं आज हारून भाई के यहाँ आया हूँ। 20 साल से मैं उनके पास आ रहा हूँ ईद की फंक्शन के लिए, इनके ओपन हाउस के लिए। हमारे पुराने दोस्त हैं, ये अजीज़ भी हमारे हैं, तो मैं इनसे मतलब बहुत दिल से बातचीत होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इनके साथ आज भी आपके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा पैदाइश है कराची, पाकिस्तान से। अच्छा, मैं मैट्रिक कराची से पढ़ के आया हूँ यहाँ। तो उसके बाद 47 साल हो गए कनाडा में। और मेरी जो बेगम है वो भी चाइनीज़ है, मगर उनका पैदाइश है रावलपिंडी की। और हमारा मुलाकात यहाँ हुआ, हमारा शादी भी यहाँ हुआ। हमारे 3 बच्चे हैं और 6 पोता पोतियाँ भी हैं मेरे पास। तो आज मैं अभी बच्चों के साथ, पोता पोतियों के साथ फादर्स डे बना के मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हारून भी हमारे बड़े भाई है, तो उनके पास भी आना बहुत ज़रूरी है। तो हारून भाई आप ज़रा कुछ बोलना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वाकई आज फादर्स डे पे टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। लेकिन पॉल हमेशा आते हैं। हम हमारी एडॉप्टेड ग्रैंड मदर थी, गॉड ब्लेस हर सोल, हेज़ल मैकेलियन। तो पॉल हर साल उनकी बर्थडे में मेरे पास आते थे, क्योंकि मेरा ख्याल है हमने उनकी बर्थडे कोई 30+ ईयर्स की थी। हाँ, हेज़ल की बर्थडे। तो पॉल हमेशा आते थे।
एक ज़माने में ये यूनिफॉर्म में होते थे, मुझे इनसे डर लगता था, तो मेरे डर को देखते हुए इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करके अब ये हमारी खिदमत करने के लिए पार्लियामेंट चले गए हैं। और इज़ वेरी सिंसियर मैन, ही वर्क्स फॉर क्या है वो, कौन सी आपका पुलिस जो डिपार्टमेंट था, यॉर्क रीजनल पुलिस में ये इन्होंने बहुत साल काम किया। वन ऑफ द गुड मैन, वेरी गुड मैन। और फिर इनके साथ जो फ़ायदा है वो ये है कि ये उर्दू स्पीकिंग भी हैं, तो इनसे पुलिस फोर्स को ये फ़ायदा है कि जहाँ यॉर्क में रीजन में हमारे साउथ एशियंस के मसले होते हैं तो इन्होंने हमेशा वहाँ उनकी हेल्प की। और आज भी एज ए पार्लियामेंटेरियन ये बेसिकली तो पाकिस्तानी है ना, तो वी आर प्राउड टू सी ऑनेस्ट सिंसियर पाकिस्तानी पार्लियामेंट मेंबर रिप्रेजेंटिंग अस। हमारे बस इनके मुताबिक यही कहना है। जी जी, ऑनर बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की आपने। हम फ़ख्र कर सकते हैं आपके पाकिस्तानी होने पे। आपने मैट्रिक तक के पाकिस्तान में, और ये कि सबसे सरप्राइज़ आपकी वाइफ भी वैसे ही मिली, हम ज़ुबान। ये तो वही वाली बात है कि हाँ मिल बैठेंगे दो दीवाने, वही वाली बात है। और आप दोनों एक ही नेचर के हैं, तो आप लोग की खूब गुजरती होगी। हैप्पी फादर डे, आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो फादर डे। मैं एक सर्टिफिकेट हारून भाई को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आप ही आइए। जी जी। शुक्रिया जी। ईद का दिन है गले आज तो लग जा, ईद का दिन है गले आज तो लग जा। मौका भी है, दस्तूर भी है, रिवायत भी है। ज़रूर लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मिलने जो आप आ जाएं, काश मेरी भी ईद हो जाए। Thank you so much. बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आप लोग हर साल यहाँ पे जमा होते हैं, हारून खान साहब के यहाँ ईद सेलिब्रेट करते हैं। इतनी रौनक, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और ईद की खुशियाँ दोबाला कर रहे हैं। आप कुछ बताएंगी? I'm a very good friend of this family. I've known them forever. When I mean forever, it means I know his mother even. So I've known him before Haroon wasn't even married. So it's a good family friend. And whenever I can make it here, Assalamu alaikum, I am here. I know her too. So I come when I can come. And my kids, they come on their own. Yeah. So mashallah, it's a very good event. Yeah. My name is Shahida Khan. शाहिदा खान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद। ईद की खुशियाँ बहुत सारी, ढेरों सारी खुशियाँ नसीब हो आपको। आमीन सुमे आमीन। मैं हर साल मौजूद होता हूँ। एक साल मैं था, लेकिन हम पाकिस्तान में थे उस वक्त। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फूड, इतने सारे लोग, और ईद इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जोक दर जोक आ रहे हैं यहाँ पे, और ईद की खुशियाँ दोबाला कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आज हम सब हारून खान साहब के यहाँ पे मौजूद हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा आप। अपना नाम भी बताइएगा। जी माशाल्लाह, मेरा नाम शुजात अली है और फ़रत मेरी बेगम है, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हारून खान हमेशा पार्टी करते हैं, बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है 50-60 साल हो गए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई ईद है। पाकिस्तान में जो ईद होती है उससे ज़्यादा अच्छी ईद लग रही है, और सब लोग जमा हैं, अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिनके रिज़्क़ में बरकत दे, और ऐसे ही ये हर ईद पे हमें बुलाते रहें और हम लोग मज़े मज़े के खाने खाते रहें। शुक्रिया। My name is Louisa Maroney, and I'm the type 2 diabetes warrior. I'm going to talk a little bit about what I do. So I work with type 2 diabetics who desire to lose weight, send the disease into remission, and get off medication. जी, हारून खान साहब के यहाँ हम लोग सब लोग जमा हुए हैं, और ये ईद की पार्टी के सिलसिले में गेट टुगेदर है। हर साल मेरे ख्याल में 40 साल 50 साल से ये कंटिन्यू ईद की पार्टी कर रहे हैं, और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, ईद मना रहे हैं। और सच पूछे तो वाकई ईद का मज़ा यहाँ आने के बाद ही पता चला है, और बहुत खूबसूरत माहौल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ मिस सबा के साथ। जी जी। वैसे मैं न्यूयॉर्क से हूँ। अच्छा। विजिटिंग हियर फॉर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस। For Saudi Arabian Airlines, she is the new boss at Toronto. So I'm just helping her
I am from engineering, she is from passenger service, but the management said help her out. That's good. And तो she- वैसे मतलब आप expert हो गए ना? That is why I don't know, she can tell you. I really don't know, but I really enjoyed by looking at the community over here. It's a big community over here, definitely, and the unity over here shows me that you guys are marvelous. Generally speaking, Toronto, I'm impressed. It's like you don't feel like you are in Canada. You feel like you are in Karachi, or you are in Delhi or Bombay or this kind of thing. टोरंटो तो आप समझ Yeah. रहे हैं वैसे हाँ Yeah, it's like this. Yeah. टोरंटो को मिनी पाकिस्तान कहने लगे हैं लोग इस कदर It looks like and it feels like. जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ ऐसे ही आज आपको लग ही नहीं रहा कि आप कनाडा में लग रहा है पाकिस्तान में नहीं जी, आप सड़क पे चली जाएं तो आपको तो ऐसा मालूम होता है आप दिल्ली में घूम रहे हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आप फर्स्ट टाइम आए, आपको बहुत अच्छा लगा है. आई विश कि आप एवरी ईयर्स आए यहाँ पे और हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करें. माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सब. माशाल्लाह हारून साहब बहुत मोहब्बत से मिले जी जी और आई रियली एंजॉयड. इट्स वेरी नाइस. थैंक्स टू हर टू ड्रैग मी हियर. सब आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सबको और ईद मुबारक. और बाकी बिल्कुल मैं इनके बात के साथ ही एग्री करूँगी कि बिल्कुल यूँ लग रहा है कि आप अपने घर में जैसे बैक होम जो एक आपको फील आता है उसमें कोई एक पर्सन भी कोई फ़र्क नहीं है. यूँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आप चाची खाला नानी बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने घर में तैयार हुए और आप अपनी खाला फूफो या मामू की तरफ गए हैं. ननिहाल और ददहाल और सब चीज़ें. अब तो बेसिकली पाकिस्तान में भी ऐसी ईदें नहीं होती. बिल्कुल ऐसी ईदें नहीं होती. और बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पे सबको देख के मतलब इकट्ठे कोई जैसे लोग कुछ यहाँ से हैं, कुछ मल्टीकल्चर है, मल्टीकल्चर आए और ये देख के बहुत अच्छा लग. बिल्कुल अपने तौर पे सेलिब्रेट कर अपने तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. सबके चेहरों पे स्माइल है, ये सबसे प्यारी बात है. एंड दिस इज़ द ओनली थिंग व्हाट वी कैन से कि दिस मेड आवर डे वंडरफुल. थैंक यू सो मच. मैं फरहत शुजात बज़्म शेरो अदब से. आज मेरे साथ मेरी सिस्टर हैं, पाकिस्तान से आई हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी कनाडा और पाकिस्तान की ईद में क्या फ़र्क है. हम लोग हारून खान साहब के यहाँ जमा हुए हैं और उनसे पूछूंगी कि उनको कैसा महसूस हो रहा है. वालेकुम अस्सलाम. मेरी जानिब से तमाम सबको जो है सबको ईद मुबारक. तो पाकिस्तान और कनाडा में ईद में क्या फ़र्क है. सब नमाज़ पढ़ने सुबह गए, उसके बाद हम लोगों ने घर में अपने कुछ हल्का फुल्का खाया पिया. आज हारून खान साहब के आना था मेरी बहन को, तो यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह. यहाँ काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह. तो और हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं होता है. हम लोग दोपहर के बाद हम लोग लंच के बाद हम लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए. लेकिन बहरहाल यहाँ बहुत अच्छा लगा. तो अल्लाह ताला सबके खैर व बरकत दे, सबको खुशियाँ दिखाए परवरदिगार. बहुत अच्छा लगा मुझे और आमीन सुम्मा आमीन. ईद की सच्ची खुशी है, दोस्तों की दीद है, जो वतन से दूर है क्या खाक उनकी ईद है. लेकिन बहरहाल मुझे महसूस नहीं हो रहा है. मेरी ईद माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान से शायद अच्छी गुजरी है आज माशाल्लाह. एक मतलब फिर मेरी बहन बहुत खूबसूरत ड्रेस आप करके आई हैं, पिंक कलर इन पे बहुत सूट कर रहा है. ईद मुबारक. ईद मुबारक. आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए. बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा नाम नूरजहाँ है. मलका तरन्नुम नूरजहाँ की हम नाम. तो बस ये है कि ड्रेस मेरी बहन है पाकिस्तान में, वो वहाँ से बना के भेजती है और जहाँ भी यहाँ पहनती हूँ सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं. तो पाकिस्तान के ड्रेसेस तो आपको पता है कितने स्पेशल और डिफरेंट होते हैं. और मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए हैं, तो मैंने यहाँ की विंटर समर सब कुछ देख लिया है. और हारून खान के यहाँ आते हैं तो माशाल्लाह इतनी वैरायटी होती है, इतनी समझ नहीं आती क्या चीज़ खाएं और क्या चीज़ छोड़ें. और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, दिन भी बहुत अच्छी है और ईद का टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा. आप लोगों का बहुत शुक्रिया.
जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के आने की वजह से यहाँ पे रौनक है हारून खान साहब के यहाँ। और लोग कोई फ़र्द वाहिद जो हैं वो कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लोग जमा होते हैं यहाँ पे, इकट्ठे होते हैं, तो ईद की खुशियाँ दोबाला होती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपने इतनी अच्छी ड्रेसिंग की है ईद के हवाले से, बहुत अच्छी लग रही है। आज सब हम लोग ईद सेलिब्रेट करने के लिए हारून खान साहब के घर पे मौजूद हैं। आप इस हवाले से ईद के बारे में कुछ कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि 26 साल पहले मैं फ़र्स्ट यहाँ पर आई थी जब उनके यहाँ पर ओपन हाउस था, और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। और इनके यहाँ जो होता है वो तो हर कोई जानता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कोई कमी हो, और लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो, दोस्तियाँ हो जाती है जिन्हें आप नहीं जानते होते हैं ना। मैं बस ईद के जनरली बात कहना चाहती हूँ फॉर ह्यूमैनिटी, दैट अगर इंसान परफेक्ट समझे वो नहीं है, और इम्प्रूवमेंट हर ज़िंदगी के हिस्से में हो सकती है हर इंसान से। आई रियली अर्ज पीपल इन आवर कम्युनिटी, बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारी, लेकिन अगर वो जनरली स्पीकिंग थिंग्स लाइक जैसे ग़ीबत ना करें, गॉसिप में ना हो, और हर के लिए बहुत अच्छा सोचें, तो मेरे ख्याल में वी विल बी सो स्ट्रॉन्ग एज ए कम्युनिटी दैट अनरीचेबल। थैंक यू। फ़रत साहिबा, आप शायरा हैं, चूँकि आपका प्रोग्राम बज़्म अदब के बारे में होता है, आप कुछ बताइए अपने बारे में। पहले अपने बारे में बताइए कि आपको शेर व शायरी का शौक़ कब से शुरू हुआ, और आप हमें कुछ अशआर सुनाइए प्लीज़। जी, मेरा नाम फरहत शुजात है और मैं टोरंटो मिसिसागा में रहती हूँ। आरफा मुज़फ़्फ़र के ई आवाज़ पे मैं बज़्म शेर व अदब का प्रोग्राम करती हूँ, उनके साथ हैं। एवरी सैटरडे यानी हफ्ते के दिन 8 बजे मेरा प्रोग्राम आता है बज़्म शेर व अदब के नाम से। और मैं कम्युनिटी हेल्पर हूँ और पोइट हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बज़्म फ़रहत है। मैं उसके प्लेटफार्म से प्रोग्राम करती हूँ, मुशायरा, बुक लॉन्च, और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों को तारुफ़ करवाना, इंटरव्यू वगैरह। तो मैं 25 साल से यहाँ अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ। हारून खान साहब के यहाँ मैं आई जब भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वाकई मैं पाकिस्तान में हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। अपने सारी कम्युनिटी, मल्टीकल्चर, सारे लोग यहाँ पे जोक दर जोक आते हैं और उन सब की मोहब्बत है, बल्कि उनका पूरा घर इसमें इन्वॉल्व है। सभी लोग जो जोक दर जोक आ रहे हैं उनको बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं ये लोग, और आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि सारी कुकिंग उनके घर में हो रही है। सब लोग बहुत सरप्राइज़ होते हैं इस चीज़ को लेकर कि घर का बना हुआ खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, ईद की खुशियाँ दुबाला होती हैं। देखा है लाल ईद तो महसूस ये हुआ, देखा है लाल ईद तो महसूस ये हुआ, एक साल और तेरी जुदाई में गुज़र गया। एक शेर के आंगन इसका रहमत वाला जो मांगे सो पाए, आंगन उसका रहमत वाला जो मांगे सो पाए, चाहे जितनी धूप कड़ी हो सब पर उसके छाए। और ईद उतरी है मेरे आंगन में, ईद उतरी है मेरे आंगन में, बिखर रही हो तेरी यादों की खुशबू जैसे, बिखर रही हो तेरी यादों की खुशबू जैसे, जिसने भी कहा ईद मुबारक मुझको, जिसने भी कहा ईद मुबारक मुझको, हर चीज़ पर हर बार लगा कि तुम हो। और ये कि ईद मिलने जो आप आ जाएं, ईद मिलने जो आप आ जाएं, काश मेरी भी ईद हो जाए। और ईद की खुशियाँ सब मना रहे हैं, खुश हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, हर साल ऐसे ही हारून खान साहब के घर पे ईद मनाने आएँ। आमीन सुम्मे आमीन। आज हम हारून खान साहब के घर पे मौजूद हैं और जानूंगी कि ईद की पार्टी कैसी रही है। आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम अरशद है। मैं विज़िट पे आया था पाकिस्तान से। मेरी बेटी यहाँ मैरिड है, ये तीसरी दफ़ा मैं इनकी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ हारून भाई के। तो ये तीसरी दफ़ा मैंने एंजॉय किया है इनका, अपने लोगों से मिल के ईद मुबारक देख के तो बड़ा इंशाल्लाह अच्छा लगा, आप लोगों से भी। तो बस हम इनके लिए दुआएं हैं सब के लिए जी। आज इकट्ठे होने का दिन था।
बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से आए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं आज हारून खान साहब के घर पे हूँ मौजूद, और यहाँ पे ईद की पार्टी सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हारून खान साहब से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अरसे से कैसे ये सारा कुछ कर रहे हैं, मुख्तसर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों के यहाँ तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। ये ईद का ओपन हाउस है जो हम लास्ट 47 ईयर से कर रहे हैं। मेरी मदर 78 में कनाडा आई थी, तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली अम्मी जान का तो इंतकाल हो गया, लेकिन ये जो सिलसिला चल रहे हैं इसमें यह है कि हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं। आज जैसे 5 एम्बेसडर्स आए हुए थे, तो उससे ये होता है हमारे जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उन्हें हमारे कल्चर का पता चलता है, जो हमारे अपने लोग हैं उनको ये पता चलता है, जो बच्चे हैं ख़ास तौर से, कि ईद होती क्या है, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा सा काम करना। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ आज के दिन 600-700 मेहमान आएंगे घर के अंदर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब साल से आ रहे हैं, उनको मालूम है हारून के घर जाना है। बस ये सिलसिला है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे रखी है, जब तक ये चलता रहेगा काम। बहुत खूबसूरत। लेकिन आपने कहा कि ये सिलसिला आपकी अम्मा जान के वक्त से चल रहा है, 47 ईयर्स हो गया इस चीज़ को आप कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपके रिस्क में बरकत दे, आपके काम में बरकत दे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है आपके यहाँ आने के बाद में, कि सारे खाने घर में बन रहे हैं, और घर के बने हुए खाने से सब लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हर साल क्या ईद और बकरीद दोनों में एक सही होता है ये सब? जी, ये फंक्शन दोनों में है, ये दोनों फंक्शन है, ईद और बकरीद के। अभी हमने 2 महीने पहले 9 हफ्ते पहले ईद की थी, अब बकरीद है, तो ये तो चल रहा है सिलसिला। सुबह कितने बजे से शुरू होता है, कितने बजे तक ख़त्म होता है ये सारी चीज़ें? देखिए, शुरू तो ये 11 बजे हम करते हैं, क्योंकि तैयारियां करनी होती हैं, नमाज़ पढ़ के आना होता है। अब ख़त्म कब होता है? ख़त्म जब होता है जब आना लोग बंद कर दें। जो 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, 9, तो ये 10-11 बज जाते हैं आमतौर से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपने कहा ये सिलसिला सालों साल से चल रहा है। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हारून खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यास्मीन बहुत दूर से आई हैं रिकॉर्डिंग के लिए। यास्मीन, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मैं अरफा भाभी को मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, क्योंकि अरफा भाभी जितना मेरा ख्याल रखती हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किलें लोग रखते हों। हमारे हर चैरिटी के काम में, जो भी मेरा कम्युनिटी का काम होता है, अरफा भाभी आगे होती हैं। और हमने 2010 से ले जाऊँ तो 2010 में मैंने फूड कलेक्ट किया था पाकिस्तान के लिए। इन्होंने लाइन लगाई थी रेडियो के ऊपर और टीवी के ऊपर फ़ोन कर। अभी हमने 2 साल पहले किया था, भाभी ने अपना जो टेलीविज़न स्टेशन था वो ख़त्म करके मेरा वहाँ पे स्टोरेज बनवा दिया था। और हमेशा इनकी टीम यहाँ आती है, कवर करती है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अरफा आपा, आपके लिए कितना अच्छा बोला इन्होंने। आपको भी ईद मुबारक।